Uh, Hello all, I'm Krishna Jeshwal. I'm a student of 2K19 batch and I'm graduated from UC Bhagalpur College of Engineering in 2K23. कभी मतलब कोई दोस्त आया, गेट खटखटाया, गेट खोलो, क्या कर रहा है, चलो लूडो खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। इसलिए सबको डायलेमा आ जाता है कि गेट करे या प्ले स्टोर खाने के लिए मिलता है। फर्स्ट ये हो सके दस के एंजॉय करो, जहाँ घूमने के जाने का मन है वहाँ घूमने जाओ, जो करना है करो। तुम जो अनअकैडमी पे विश्वदीप होती है उनको फॉलो करो, Yes, मैंने sir. उनको फॉलो किया। Can we start, sir? Okay, you can start. Dear Krishna, sir, good day, everyone. It's an absolute pleasure to have you join us for this special online interview session, where we have the privilege of delivering into the remarkable journey and insight of our distinguished alumni. I am delighted to introduce our alumni speaker for today's webinar. Our speaker today is Krishna Jaswal, who is an ex-scientist officer trainee at BAR with an impressive background and AIR 112 in GATE CSE 2024. Krishna sir is a graduate of BC Bhagalpur, having completed their studies in 2023. Since then, they have gone on to achieve great success in public sector enterprises and in government sector. Today, Krishna sir has generously agreed to share their experiences and insight with us. And I am confident that we will all benefit from their perspective on college life and government sector. Please join me in welcoming our estimated alumnus, Krishna sir, to the webinar. Let me introduce you to the indispensable part of our college, Campus TV and Radio Club, founded by Mr. Kumar Gaurav, 2K19 batch, and we are its fellows. We all are from second year. We should commence now. Made alumnus Krishna sir to the webinar. Sir, can we move forward towards the questions? Yes, please. Yes, sir. First of all, sir, please tell us about yourself. Hello all, I'm Krishna Jeshwal. I'm a student of 2K19 batch from Computer Science of Engineering. I graduated in 2K23 and as a fresher I joined BRC as a trainee scientist officer. And with BRC I prepared for the GATE Computer Science and secured All India rank 112 in GATE Computer Science this year. And I'm planning to join either MTech or PSU's organization like IOCL, PCL or in GALE India. That is it. Now you can continue, guys. Next. So, what was your dream in during your childhood period? बचपन से तो कोई ऐसा ड्रीम नहीं था। बचपन में ड्रीम चेंज होते रहते हैं सबके। कभी पुलिस बनना रहता है, अच्छा मूवी में देख ले कि पुलिस है तो पुलिस बनना रहता है, कभी डॉक्टर बनना रहता है। तो इसी तरह चेंज होते रहा, बस फ्लो के साथ जाता गया और 11th-12th में पीसीएम लिया और उसी टाइम से मतलब इंजीनियर बनने की इच्छा हो गई और फाइनली इंजीनियर बन गया। और उसके बाद मन तो था कि सॉफ्टवेयर फील्ड में जाओ कि जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बट एट द एंड मुझे गेट में अच्छा रैंक नहीं आया, आईआईटी नहीं जा पाया, तो मैंने एज ए फ्रेशर मैंने बात ज्वाइन कर लिया। ऐसा कोई खास ड्रीम नहीं था ये करना है, बस आई गो विद द फ्लो। Sir, how do you feel about being a hosteler or a day scholar? हॉस्टलर के तो बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि वो ही कैन एंजॉय द कैंपस लाइफ होल डे, लेकिन कुछ जैसे कि कुछ नॉइज वगैरह का भी इश्यू होता है, पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता है। लेकिन डे स्कॉलर के पास तो एक अपना पर्सनल स्पेस मिल पाता है और वो लेकिन वो है कि वो कैंपस लाइफ सही से एंजॉय नहीं कर पाता। कि मैं तो एक्चुअली मैं हॉस्टलर नहीं था, मैं बाहर से ही आता था, तो मुझे एक्चुअली पर्सनल स्पेस ज्यादा अच्छा लगता था, मुझे अकेले में रहना, इसीलिए मैं प्रिफर करता हूँ डे स्कॉलर को ही। सर, तो आपके Okay, अकॉर्डिंग sir. सर हॉस्टल में काफी सा डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर टाइम पास वगैरह क्या हाँ, सही रहता है बट सर?
हॉस्टल में जैसे कि टाइम पास वगैरह, जैसे कि कभी मतलब कोई दोस्त आया, गेट ठकठकाया, गेट खोलो, क्या कर रहा है, चलो लूडो खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर वही हम बाहर रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फ्रेंड सर्कल से दूर रहते हैं। तो ये मतलब कितना तो हॉस्टल में भी रह के अच्छा रिजल्ट कर लेता है। ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि हॉस्टल में रहना या बाहर रहना। मुझे पर्सनली बाहर रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं बाहर रहा। Sir, reflecting back on your time as a student, what were some of the most impactful experience or lesson you gained from our college? बेसिकली जो भी एक्सपीरियंस मिला सीनियर सब से ही मिला, कि सीनियर सब बताते थे कि आप या दो अपॉर्चुनिटी रखो, या तो इधर गेट भी रखो, इधर प्लेसमेंट भी रखो। अगर वर्स्ट केस में प्लेसमेंट नहीं लगता है तो गेट के थ्रू तुम टॉप एनआईटी या ट्रिपल आईटीज या आईआईटीज में जा सकते हो। तो जो भी मतलब कंट्रीब्यूशन रहा सीनियर सब का रहा या कॉलेज के फैकल्टी का रहा, जो उन्होंने मतलब गाइड करते रहे थ्रू आउट देयर कॉलेज की, मतलब कैसे जाना है, प्लेसमेंट में कैसे जाना है, या गेट के थ्रू कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है कि पीएसयूज है, ये सब है। उन्होंने मतलब सीनियर ने बहुत ज्यादा ही गाइड किया कॉलेज के। जो कॉलेज का सीनियर नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा ही इम्पैक्टफुल रहा कॉलेज लाइफ में। Sir, being from branch in of CSC, sir, I always face a dilemma. Like अभी तक सर हम सिलेक्ट ही नहीं कर पाए हैं कि हमको जाना किधर है, इधर प्लेसमेंट के लिए या फिर गेट के लिए। तो सर दोनों नाव पे पाँव रखना सही रहेगा या फिर कोई एक चीज पे टिके रहना सही रहता है? तुम लोग कौन से ईयर से हो अभी? सर मैं 3rd ईयर में हूँ। थर्ड ईयर है, मतलब अब तुम लोगों को सीरियस तो होना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेकेंड ईयर सब इंजॉय करते हैं तो करना ही चाहिए वैसे। तो थर्ड ईयर में Yes, देखो, हाँ मोस्टली सबको डायलेमा आ जाता है कि गेट करे या प्लेसमेंट करे। तो देखो मैं अपना सीन बताता हूँ। जब लॉकडाउन का पीरियड था उस टाइम मैंने मतलब प्लेसमेंट के लिए कुछ कुछ देखा था, कि जैसे कि बहुत सारा मतलब कि पहले तो कोडिंग करना पड़ेगा, फिर कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि ओएस डीबीएमएस सीएन ये सब पढ़ना पड़ता है। फिर मैंने एक सिमिलरिटी देखा कि हाँ मैंने एक सिमिलरिटी देखा कि जैसे सी डीएस एल्गो ओएस एंड डीबीएमएस ये सारे और सीएन जो है ये कॉमन है गेट में भी और प्लेसमेंट में भी। तो उस टाइम मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं गेट का प्रिपरेशन करूं जिससे कि प्लेसमेंट का भी प्रिपरेशन हो जाए। तो यही है कि लेकिन प्लेसमेंट में ये होता है कि तुमको सही से कोडिंग करना पड़ता है, लीड कोड के 400-500 क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, कोड सेव एग्जैक्टली करना, सर। हाँ कोड सेव करना पड़ता है, कोड फोर्स करना पड़ता है। तो मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया, मैंने थर्ड ईयर में गेट दिया, 5 सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर किया था, उसके साथ मैंने गेट दिया तो मेरे अराउंड 4500 के आसपास रैंक आई थी। तो फिर मैंने देखा कि मतलब मोहित गुप्ता सर होंगे और बहुत सारे मतलब सीनियर थे जिनके अच्छी प्लेसमेंट लग रहे थे 2022 में। तो Yes, फिर sir. मैंने फिर मैं मूव कर गया प्लेसमेंट के लिए। फिर मैंने 5-6 मंथ लव बबर का एक कोर्स लिया था, उनसे मैंने कोडिंग किया। लेकिन फिर पता चला कि रिसेशन आ गया, सारा कोडिंग मतलब चला ही गया। मतलब कंपनी मतलब बहुत सारे लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया, बहुत सारे मतलब बहुत जगह अप्लाई किया, कहीं से मतलब कोई कॉल नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं गेट की तरफ मूव कर गया अराउंड सितंबर। तो सितंबर में मूव करने के बाद मैंने सही से गेट दिया, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह हो गया तो मेरे 1500 रैंक आया। तो ये मतलब पर्सनल डिसीजन है कि तुम गेट के साथ ही प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट का अगर या तो गेट पे फोकस रहना है या प्लेसमेंट पे फोकस रहना है, तुम वो दोनों चीज का एक साथ तैयारी कर सकते हो। ऐसा बात नहीं कि दो नाव में पैर रखना होगा। ये ऐसा बात हुआ कि एक ही नाव में है, लेकिन थोड़ा सा गेट का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है और प्लेसमेंट का थोड़ा कम है। लेकिन ये कि प्लेसमेंट में कोडिंग थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। मैंने खुद 400-500 क्वेश्चन लीड कोडिंग किया है विद गेट प्रिपरेशन। तो ये मतलब मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि तुम प्लेसमेंट के साथ भी गेट का तैयारी कर सकते हो। Okay, sir. Thank you a lot for this. और आपके अचीवमेंट के लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू। तो मेरा सवाल ये था कि आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ में मोटिवेशन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती है और मोस्टली स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो सर आपकी ऐसी कौन सी स्टडी मटेरियल या फिर टेक्निक रही थी जो कि आपको इतना मोटिवेटेड या फिर आपको इतना इफेक्टिवली आपके गोल के ऊपर काम करने के लिए मोटिवेट किया? और सर प्लीज कैन यू शेयर विथ अस? अनामिका भी बोल रही थी ना अभी। यस सर। हाँ तो अनामिका देखो, मेरा फंडा क्लियर था कि मुझे 4th ईयर तक कोई ना कोई जॉब लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया। मैंने गेट भी किया, प्लेसमेंट भी किया। लेकिन जब मुझे लगा कि प्लेसमेंट से थोड़ा रिस्क आ रहा है तो मैंने गेट की तरफ मतलब गेट को मैंने ज्यादा फोकस कर दिया। तो
मैंने मतलब सही से मतलब जो होता है ना, जो अच्छे से मतलब 7-8 घंटा पढ़ने, वो मैंने पढ़ा अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ मतलब 23 की प्रिपरेशन में। जो मतलब 22 की प्रिपरेशन में तो पढ़ाई था, और 23 के लिए मैंने सितंबर के बाद पूरा सही से गेट के लिए फोकस कर दिया। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे आते थे कि चलो कॉलेज में घूम के आ जाते हैं, या चलो इधर चल जाते क्रिकेट खेल लेते हैं, या कॉलेज में फेस्ट हो रहा है यहाँ चल जाते, तो मैं वो अटेंड करता था। लेकिन यही है कि मैं अपने आप को ये रखता था कि मुझे 7-8 घंटा रोज पढ़ना ही है, जैसे भी करके मुझे पढ़ना ही है। तो वही है कि तुमको खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कि खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे 8 घंटे कैसे भी करके बैठना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, नोट्स देखने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, और लेक्चर्स करने हैं। तो यही है कि खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो बोलते हैं चलो क्या करेगा पढ़ के, बहुत पढ़ाकू बनता है, तो ये सब इग्नोर करना है उन लोगों को। फिर जब रिजल्ट आएंगे तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा कि हाँ हाँ हम पढ़ाकू थे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। Sir, as we know, you also cracked the bar examination previously. Could you share with us your journey leading to this achievement? हाँ, मैंने एक्चुअली मैं एक्सीडेंटल साइंटिस्ट हूँ। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे बार्क ज्वाइन करना है। तो एक्चुअली हुआ कि मैंने गेट देखा था, 1500 रैंक आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वर्दी नहीं हूँ, कि मुझे जैसे बोलता है ना कि थोर आई एम स्टिल वर्दी। तो वही प्रूव करने के लिए मैंने बार का फॉर्म डाला। तो बार का फॉर्म डाला तो मैंने बार क्लियर हो गया। फिर रिजल्ट आया, फिर मैंने इंटरव्यू के लिए, जो बार का होता है वो इंटरव्यूज होता है, इंडिया टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो नोट्स है, जो होता है ना नोट्स, जो हमारे गेट के नोट्स होते हैं, उसको मैंने सही से देखा। कि जैसे कि हम लोग गेट का अगर तैयारी करते हैं तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि चलो ये क्वेश्चन ऐसे आया, इसको ऐसे बनाना है। लेकिन गेट जो इंटरव्यू होते हैं वो होता है कि व्हाई एंड हाउ। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि आपने ये ऐसा क्यों है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि तुम सीएससी स्टूडेंट हो तो तुमको इंप्लीमेंटेशन पार्ट आना चाहिए। तो मैंने अच्छी कोडिंग अच्छी करके रखी थी, तो मुझे इंप्लीमेंटेशन पार्ट में सही से मैंने इंटरव्यूअर को बता दिया। तो इस तरह से उन्होंने मतलब लगा कि हाँ इसको सीएस का भी अच्छा नॉलेज है, और ये कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग है, और कोडिंग वाइज भी स्ट्रांग है। तो इसलिए उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए। तो यही है कि बार के लिए तुमको व्हाई एंड हाउ पता करना पड़ेगा। गेट में तो बस एज इट इज न्यूमेरिकल बनाते हैं। सर करेंटली हम लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, तो सर आपका क्या सजेशन रहेगा हम लोग के लिए कि सर अभी से हम लोग को गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर अभी रहने देना चाहिए, अभी थोड़ा बहुत कॉलेज एंजॉय करना चाहिए? सेकेंड ईयर क्या मतलब, अब तो तुम लोग थर्ड ईयर में ही जाने वाले ना 1-2 मंथ में, तो तुम लोग एलिजिबल हो जाओगे गेट के लिए। तो मैं तो बोलूंगा कि थर्ड ईयर में गेट ट्राई करना चाहिए कम से कम। अगर जैसे कि अगर थर्ड ईयर में तुम गेट अच्छे से रैंक से क्रैक कर लेते हो, लेकिन तुम्हें पीएसयू जाना है, तो तुम नेक्स्ट ईयर पीएसयू के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि पीएसयू में करंट गेट स्कोर मांगता है। तो यही कि 23 में तुम ट्राई कर सकते हो कि मतलब 4-5 सब्जेक्ट देख लिए। टाइम तो उतना नहीं है अभी, टाइम मतलब अच्छे से पढ़ने पड़ेगा। कि जैसे 9 मंथ बचे होंगे मोस्टली, तो 9 मंथ में तुम अगर तुम्हारा अच्छा बेस है तो क्रैक कर सकते हो। लेकिन यही है कि तुमको सेमेस्टर्स भी देखने और ये भी देखने। तो मैं बोलूंगा कि अभी तुम 4-5 सब्जेक्ट्स सीरियसली पढ़ो, कि ऐसा नहीं कि मुझे 23 में फिर से मतलब नेक्स्ट, जैसे कि नेक्स्ट ईयर कौन सा गेट 25 होगा और 26 के लिए तुमको फिर से पढ़ना पड़े। तो इसलिए 25 का जो गेट दो तो उसको थोड़ा सा सीरियसली दो, कि 5 सब्जेक्ट जो मैं कंप्लीट करूँ उसको अच्छे से करूँ, और उसको न्यूमेरिकल्स लगा लेने हैं, पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, और अच्छे से तैयारी करना है। तो सीरियस हो जाना चाहिए। अब थर्ड ईयर में मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर इस बस इंजॉयमेंट के लिए होता है। थर्ड ईयर से पता कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या क्या करना है, ये पता कर लेना चाहिए थर्ड ईयर में। तो सीरियस हो जाना चाहिए तुम लोगों को। कॉलेज लाइफ हो गया, 2 साल ही रहता है कॉलेज लाइफ। तो जैसे कि आप सीएससी से है, तो जैसे कि सीएससी में पीएसयू बहुत कम है, तो कुछ ये बता सकते कौन कौन से पीएसयू सीएससी के लिए ज्यादा होगा? देखो सीएससी में पीएसयू कम है, लेकिन बच्चे पीएसयू में जाते भी कम है। तो जो कटअप होता है वो ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है मैकेनिकल वाले। जैसे मैकेनिकल में बहुत सारे पीएसयूज है, तो मैकेनिकल वाले जितने बंदे होते हैं सब जाते हैं पीएसयूज की हो जाते हैं, और एमटेक में कम जाते हैं। लेकिन सीएससी में ज्यादा एमटेक की हो जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि सीट कम है तो चांसेस कम है। तो बिकॉज एमटेक में भी बच्चे जा रहे हैं, तो तुमको मतलब इधर पीएसयू में कम आ रहे हैं, तो सीट इतने तो कभी कभी खाली भी रह जाते हैं। तो जैसे कि इंडियन ऑयल का पिछले साल मतलब 700-800 रैंक तक बुलाया है। तो पता कर ही सकते हो, मतलब 10 सीट रहता है और 800 रैंक तक बुला रहे हैं। तो मतलब बच्चे कम जाते हैं पीएसयू में। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज कम है, बहुत सारे पीएसयू है। इस साल में बताऊं तो बहुत सारे पीएसयू का फॉर्म निकला है। तो अराउंड 500 सीट्स रहते हैं सारे पीएसयू मिला के। तो
अगर तुम्हारा 1000 के अंदर रैंक है गेट में तो डेफिनेटली तुम्हारे पास चांस है पीएसयू Yes, मिलेगा। तो ये टेंशन नहीं लो कि पीएसयू नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। 500 के आसपास रैंक का टारगेट करो, आराम से मिल जाएगा कोई भी पीएसयू। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा। सर जैसे कि एमटेक के सर, बाद रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं या फिर ये कॉर्पोरेट में जॉब में? वो तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुमको इंटरेस्ट है कि मुझे रिसर्च करना है, कि रिसर्च में ही रहना है, कि और एडवांस कंप्यूटिंग देखना है, तो तुम जा सकते हो एमटेक रिसर्च में। लेकिन यही है कि सबको इंटरेस्ट नहीं रहता, सबको चाहिए कि पैसा चाहिए हमको, कि 1 करोड़ पर साल का कमाना है। लेकिन वही कि रिसर्च में जो गवर्नमेंट है वो रिसर्च को ज्यादा फंड नहीं करती इंडिया में। तो एक पीएचडी स्कॉलर होता है, उसका स्टाइपेंड कितना रहता है? अराउंड 40K के अराउंड स्टाइपेंड रहता है। तो 40K में तुम एमटेक करने के बाद तुम तो नहीं चाहोगे कि मैं 40,000 कमाऊं पर महीने का। तुम तो चाहोगे कि मैं ना 2 लाख 3 लाख रुपया कमाऊं। तो इसीलिए मतलब ये है कि पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम कम सैलरी में भी सर्वाइव कर सकते हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर रिसर्च, अदरवाइज यू शुड गो फॉर कॉर्पोरेट। So जैसे how do you see the AI affecting the developer jobs or in a particular field of? Basically, I am not a right person to answer this question Yes. because I am not in Yes. software field. बट जैसा कि मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूं तो मुझे पता चलता है कि Yes. मतलब जैसे तुमको एआई के साथ खुद को ट्रेन करना है, कि जैसे कि Yes. एआई को कैसे यूज करना चाहिए, तो तुम्हारे जो एआई है वो तुम्हारा जॉब नहीं खाएगा। अगर तुम जो पुराना टेक्निक्स है, जैसे पीपीटी बनाते थे तो पहले Yes. एक एक लाइन खुद से ही लिख के बनाते थे। आजकल आ गया गेसिगामा एआई है, उसमें तुम जैसे डाटा स्ट्रक्चर में मान लो हैशिंग तुमको करना है तो हैशिंग डाल दो, Yes, sir. वो खुद तुमको जनरेट करके दे देता है। तो बस अगर तुमको एआई यूज करने आता है तो डेफिनेटली तुम्हारा जॉब सिक्योर है। तो बस एआई को यूज करने सीखना। Sir, how does COVID-19 pandemic affected your career trajectory? बेसिकली मुझे जो गेट की प्रिपरेशन का आइडिया था वो कोविड-19 में ही आया था। तो एक्चुअली मैंने क्या किया कि जैसे कि इंटर्नशिप के लिए आता है ना सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तो इंटर्नशिप के लिए मैंने इंटर्नशाला ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से मैंने देखा कि बस डेवलपमेंट से कुछ नहीं होने वाला, तुमको जो होता है वो कोडिंग में आना चाहिए। तो मैंने उसी टाइम कोडिंग भी करना स्टार्ट किया। तो मतलब बहुत सारा आइडिया लगा कि डेवलपमेंट क्या है, कोडिंग क्या है, और गेट में क्या अंतर है, गेट वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस डीएसए, ये सब पता चला। जबकि अगर कॉलेज में रहते तो इतना टाइम नहीं मिल पाता ना कि एक्सप्लोर करने के लिए। तो बेसिकली बहुत ज्यादा टाइम मिला कोविड-19 के दौरान, और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल गया। तो डेफिनेटली इट इफेक्टेड माय करियर ट्रेजेक्टरी अ लॉट। अगर कोविड-19 नहीं होता तो मैं अभी शायद मैं कोई कॉर्पोरेट में 3 लाख का जॉब कर रहा होता। लेकिन मैंने उस टाइम गेट को एक्सप्लोर किया, अच्छे से एक्सप्लोर किया, मुझे अच्छा खासा टाइम मिला, तो अभी मैं एक अच्छे पीएसयू में बार्क में मैंने ज्वाइन किया था। तो डेफिनेटली इट अफेक्टेड माय करियर ट्रेजेक्टरी। सर आप आगे पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं या एमटेक करना चाहते हैं? एक्चुअली अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, सोचा था। लेकिन अगर मतलब मेरे एक्चुअली डिपेंड्स ऑन माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा अच्छा रोल प्ले करते हैं इसमें, वो जो उनको मैं कन्विंस कर पाया आईआईटी बॉम्बे के लिए, तो डेफिनेटली आई विल जॉइन आईआईटी बॉम्बे, अदरवाइज आई हैव टू चूज पीएसयू। ओके सर। एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है, तो वो चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब से मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में ही जाए, ना कि कोई प्राइवेट सर सेक्टर मैं में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपके नजरिए से सक्सेस का क्या मतलब है? आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि अभी के टाइम में लोग पैसे तो कमा रहे हैं, बहुत से लोग हैं छोटा मोटा स्टार्टअप लोगों ने खोल रखा है, तो बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काम तो कर रहे हैं पर वो खुश नहीं है। तो क्या हम उन्हें सक्सेस के कैटेगरी में रख सकते हैं? तो मेरे लिए सक्सेस का एक लाइनर डेफिनेशन है कि सक्सेस इज मतलब कि मतलब जो तुमको चाहिए वो अगर मिल गया तो वही सक्सेस है। मतलब सक्सेस इज गेटिंग व्हाट यू वांट। तो जैसे मैं अपना खुद एग्जांपल दूं, तो मैंने जैसे कि पिछले साल गेट दिया तो मेरा 1500 रैंक आया, तो मैं अनसेटिस्फाइड था अपने गेट रैंक से। तो वो मुझे लगा नहीं कि ये मेरा सक्सेस है। मुझे लगा कि जैसे जेई मैंने मेरी खराब रैंक आई, उसी तरह मेरे गेट में खराब रैंक आई और मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। लेकिन यही है कि इस बार मेरी 112 रैंक आई, तो मैं अब लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं एक बार के जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे लगा नहीं कि वो सक्सेसफुल होना है। तो मतलब सक्सेस इज मतलब गेटिंग व्हाट यू वांट। जो तुमको चाहिए वो अगर मिल गया तो वही तुम्हारे लिए वो सक्सेस है। दैट इज इट।
सर जैसे आप बोले कि अभी आप बार्क में जॉब कर रहे हैं, फिर पीएसयू में भी आप छोड़ चुके हैं, फिर आईआईटी बॉम्बे में आप एमटेक करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे स्विच करना हम लोग को सही रहेगा या फिर एक कंपनी में से जॉब कर रहे हैं तो फिर करते रहना चाहिए? बेसिकली मतलब जो तुम्हारा मन में आ रहा है करो अभी, मतलब एटलीस्ट 30 तक तो तुम ट्राई कर ही सकते हो ना कि क्या करना है। जैसे कि तुमको मन नहीं लग रहा, चलो पीएसयू ट्राई करते हैं, फिर एमटेक कर लेते हैं। ऐसा कोई तुम्हारे जो कैरियर होता है, फ्यूचर कैरियर पे इफेक्ट नहीं करेगा। तुम इधर से उधर स्विच कर रहे हो, बस तुमको लर्निंग मिलेगा कि यहाँ पीएसयू में कैसे काम होते हैं। फिर एमटेक ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आईआईटीज का लाइफ पता चलेगा कि आईआईटीज में कैसे लाइफ होता है। अभी टिल हम लोगों ने बीसी का लाइफ देखा है, फिर वहाँ पे आईआईटी का लाइफ पता चलेगा। फिर एमटेक करके अगर हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कॉर्पोरेट का लाइफ पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब तुमको बस स्विच करके एंजॉय करना है कि चलो फ्लो के साथ जाते हैं, जिधर मजा आएगा उधर चले जाएंगे। तो सर आप एक और चीज बता सकते हैं कि जैसे अगर हम एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो दूसरे के लिए ऐसे प्रिपरेशन का टाइम कैसे मैनेज कर पाए हम लोग? गवर्नमेंट का बात करिए या प्राइवेट का? तो सर जैसे मतलब अभी सेकेंड ईयर में तो मेरा मन है सिविल सर्विसेज में जाने का, उस सेक्शन में। तो अभी हम इतना अच्छा, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे कि हम सेमेस्टर का भी पढ़ ले और उस साइड का भी तैयारी कर ले, तो ये मैनेजमेंट कैसे कर पाए? जैसे अभी तुम कॉलेज में हो, तो तुम बेस्ट टाइम तो यही है कि अभी प्रिपेयर करो। कि जैसे सेमेस्टर के लिए जितना ही दिन पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मान लो सेमेस्टर का डेट आया तब से स्टार्ट करते हैं ना, तो बाद बाकी तुम्हारे पास फ्री टाइम रहता है, उस फ्री टाइम को तुम यूटिलाइज करो सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में। और उसके बाद अगर नहीं हो पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 1 साल का ड्रॉप ले लो। मतलब सिविल सर्विसेज में तुमको डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम। या जॉब के साथ तुम प्रिपेयर करोगे तो फिर तुमको मतलब अब कोडिंग भी करना पड़ेगा और सिविल सर्विसेज भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो तुमको मतलब डेडिकेट करना पड़ेगा। सेमेस्टर तो इफेक्ट नहीं करता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि सेमेस्टर इफेक्ट करेगा तुम्हारे प्रिपरेशन पे। होप यू गॉट द आंसर मोना। हाँ, मैंने जैसे मतलब सेमेस्टर के लिए तो तुमको उतना पढ़ना की जरूरत नहीं पड़ता ना। जैसे कि जैसे सेमेस्टर के एग्जाम का डेट आया तो कितना 15 दिन पहले पढ़ना। हाँ, 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते तो बस वही 15 दिन पढ़ना पड़ता है। तो बाद बाकी तुम्हारे पास 5 महीना कितना बच गया, 5 महीना तो फ्री टाइम है, तो उस टाइम में तुम सिविल सर्विसेज का सही से तैयारी कर सकती हो। और कॉलेज मतलब बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज के प्रिपरेशन के लिए। तुम सोचोगे कॉलेज के बाद हम ड्रॉप ले लेते हैं 2-3 साल का, लेकिन तुम पे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। लेकिन कॉलेज के साथ कोई भी तैयारी मतलब बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। अगर तुमने मतलब अपना बेस भी बना लिया ना सही से, तो वो तुम्हारे जो सिविल सर्विसेज की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये टेंशन मत लो कि सेमेस्टर है, सेमेस्टर हो जाता है। हम लोगों ने भी नहीं दिया और सबने, तुम सब दे ही रहोगे सेमेस्टर, ये हो ही जाता है। सर गुड इवनिंग सर, मैं भानु, फाइनल ईयर हाँ सर। भानु बोलो। हाँ हाँ, तुम्हारा लिंक्डइन पोस्ट देखते रहता हूँ, या तुम्हारा वो ग्रुप में एक्टिव रहते हो ना तुम, कौन सा है कम्युनिटी अफेयर्स जो? सर। हाँ हाँ हाँ, तुमको मैं जानता हूँ सही से। यस सर। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपने कोविड का टाइम का यूटिलाइज किया। ये सर, ये जो एक मानसिकता बन गई है हम लोगों के अंदर की सिर्फ एग्जाम के टाइम से पहले पढ़ना, और मतलब सेमेस्टर तो अलग बात है, और इस चीज़ के लिए जैसे अभी गेट का प्रिपरेशन था तो उसको मतलब एक रॉकेट साइंस के रूप में लेने लगते हैं लोग कि हाँ मतलब बहुत हार्ड है गेट। तो वो चीज़ पे थोड़ा प्रकाश डालते कि मतलब गेट करने के लिए इन लोगों को क्या एक वे ऑफ मतलब वो चाहिए होगा कि बस कंटिन्यूस पढ़ते रहे, या कुछ ऐसा तूफानी कुछ करना होगा? देखो, गेट अगर तुम्हारे लिए तैयारी करना है तो तुम जैसे सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स है उसको तुम ऐसे गेट गेट सब्जेक्ट पढ़ो अच्छे रिसोर्सेज राइट से। राइट। हाँ, तो तुम्हारा ना सेमेस्टर का प्रेशर रहेगा ना किसी चीज का प्रेशर रहेगा, और तुम्हारा गेट का भी तैयारी स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। तो मैंने तो ये स्ट्रेटजी अपना, जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स रहते थे उसको मैं एज ए गेट सब्जेक्ट पढ़ लेता था, और इससे मेरी सेमेस्टर की भी सही से तैयारी हो जाती थी और मुझे सेमेस्टर के टाइम कोई बर्डन नहीं रहता था। तो यही स्ट्रेटजी रहना चाहिए, मतलब सेमेस्टर सब्जेक्ट को ट्रीट करो एज ए गेट सब्जेक्ट, तब कोई बर्डन नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है गेट वगैरह, बस यही कि तुमको एक सिलेबस कंप्लीट करना है, पीओआईक्यूज लगाने हैं और टेस्ट सीरीज देना है, बस। सिलेबस अगर तुम्हारा कंप्लीट है तो मैंने इस साल जो मैंने गेट दिया है, मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही था, तो मैंने बस मुश्किल से 4 मंथ बस टेस्ट लगाया। तो 4 मंथ अगर इनफ है तुम्हारा, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 4 मंथ इनफ है गेट क्रैक करने के लिए। ये नहीं बोलूंगा कि मैं 4 मंथ में तुम गेट क्रैक कर सकते हो। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो तुम 4 मंथ अगर सही से टेस्ट सीरीज लगाते हो तो तुम गेट क्रैक कर सकते हो। तो फर्स्ट फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन। राइट सर।
Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Sir, are there any hobbies or interests you have developed outside of your career that you particularly passionate about? हॉबीज मेरा तो मतलब एक मन था बचपन से कि चलो मैं बच्चों को गाइड करता हूँ पढ़ाने के लिए। तो मैंने अभी मतलब अपने हॉबी को कंप्लीट करने के लिए एक मार्गदर्शन बाय आईआईटियंस है, वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। बेसिकली वो गाइड करता है बच्चों को इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, जैसे बार का भी रिजल्ट आया तो उन कैसे उसको गाइड करना है, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो एज ए हॉबी मेरा था कि बच्चों को गाइड करना, सजेशंस देना, टीचिंग करना, तो उसी को मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ थ्रू मार्गदर्शन बाय आईआईटियंस। सर गेट के प्रिपरेशन के लिए क्या सेल्फ स्टडी और यूट्यूब फॉलो करना इनफ है? इसका आंसर तो मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि यूट्यूब से मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे वो होता था ना कि एक शेड्यूल, मतलब वो लोग यूट्यूब पे सही से पढ़ाते भी नहीं है, मतलब जस्ट ओवरव्यू दे देते हैं। तो एक पेड कोर्स अच्छा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से तैयारी भी हो पाएगा। जैसे कि एक तुम कोर्स लेते हो तो वो तुम्हें डीपीवीज देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और सब कुछ देंगे। लेकिन अगर तुम यूट्यूब से करते हो तो तुमको सारा चीज खुद से ही कलेक्ट करना है कि टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा, क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे। तो अगर तुम ये सब चीज को मैनेज कर सकते हो तो यूट्यूब वीडियो सफिशिएंट है। मतलब ऐसा जो आयुष सर है, आयुष झा सर है, उन्होंने यूट्यूब से ही पढ़ के मतलब अच्छा रैंक लाया। तो डेफिनेटली यूट्यूब से भी पढ़ के ला सकते हो, लेकिन यही है कि तुमको खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा कोर्स ले लो और आराम से तैयारी करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा महंगा पड़ता भी नहीं है, 10-15 हजार या 20 हजार तक एक अच्छा कोर्स आ जाता है। डेफिनेटली कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। सर आपने किसको फॉलो किया था? जैसे कि अभी बहुत सारे चल रहे हैं फिजिक्स वाला अनअकैडमी, तो मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ कोर्स ले या फिर समझ नहीं पाते हैं। तो फिर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखो मैंने स्टार्ट किया था अनअकैडमी, सुरेश विद्यार्थी सर है हमारे सीनियर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एक अनअकैडमी का चैनल था, उनसे मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। यूट्यूब से मैंने उनसे सीओए पढ़ा। फिर मुझे लगा कि उतना मतलब जो होता है ना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, तो मैंने फिर अनअकैडमी का ही एक कोर्स ले लिया। वो एक मिनट, कुछ कॉल आ रहा है। हाँ, फिर मैंने एक अनअकैडमी का ही कोर्स ले लिया। तो मैंने अनअकैडमी के कोर्स से लगभग उसी से तैयारी किया। और जो डिफरेंस था यूट्यूब लेक्चर्स और अनअकैडमी के लेक्चर में, मुझे पता चला कि वहां पे वो ना कुछ टिप्स देते थे, बस मतलब एक ओवरव्यू दे देते थे टॉपिक्स का। लेकिन जो ये अनअकैडमी था, वहां पे वो 1-to-1 पढ़ाते थे, 1-to-1 डाउट लेते थे। तो डेफिनेटली एक फायदा है कोर्स का एज कम्पेयर टू यूट्यूब वीडियो। तो बहुत सारे जैसे अनअकैडमी है, गेट वाला है और गो क्लासेस है। तो लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जैसे कि गेट सीएससी के स्टूडेंट्स को तो गो क्लासेस के साथ जाने का। मैंने उनका टेस्ट सीरीज लिया था, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। अगर मैं मतलब अपने फाइनल ईयर में उनका टेस्ट सीरीज ले लेता तो मेरा ये ट्रेंड जो मुझे 1 साल का टाइम लगा वो उसी साल में आ जाता। तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन गो क्लासेस एंड देयर टेस्ट सीरीज। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने इट इज अ जेन्युइन रिव्यू। Sir, did you feel the students were competitive during your college time? स्टार्टिंग में आया था तो लगा कि बच्चे सब मतलब अच्छे अच्छे स्कोर लेके आए थे, कुछ का स्कोर मेरे से अच्छा था, तो लगा कि हाँ अच्छा कंपटीशन है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो सबकी एनर्जी डाउन होती गई और सब एक टाइम पे सब बराबर हो गए। और फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं नहीं, जो जो मतलब जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। स्किल तो सब इक्वली टैलेंटेड था, लेकिन यही है कि अगर कंपटीशन है लेकिन तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो कंपटीशन जो तुम्हारे तुमसे आगे वो पीछे चल जाएगी। तो बस वही कि हार्ड वर्क करते रहना है। कंपटीशन वगैरह क्या मतलब होते रहता है, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं वही आगे जाएंगे। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर जाते जाते जो मोटिवेशन होता है कम हो जाता है, तो क्या इसके पीछे क्या रीजन होता है सर कि फर्स्ट ईयर में हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और फाइनल ईयर जाते जाते जो हमारा मोटिवेशन होता है उसका लेवल ही बहुत अलग हो जाता है? हाँ, जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में आते तो लगता है कि अरे प्लेसमेंट ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हम लोगों को पता चलने लगता है कि अरे प्लेसमेंट नहीं लगने वाला है। बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है कि जैसे कि कोई कंपनी नहीं आएगी, फिर खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जैसे ये सब मतलब एक फैक्टर हो जाता है कि हमारे मोटिवेशन को डाउन करने। लेकिन वही जो आईआईटीज में होते हैं कि अच्छे प्लेसमेंट पहले से उनको पता रहता है कि चलो अच्छा प्लेसमेंट लगेगा फाइनली आते आते, तो उनके पास एक मोटिवेशन आता है कि चलो प्लेसमेंट लग ही जाएगा। लेकिन हम लोग के पास कोई मोटिवेशन नहीं मिल जाता।
तो यही एक कारण होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। लेकिन यही है कि अगर वो मेहनत करते रहे सही डायरेक्शन में, अच्छे से तैयारी करते रहे तो हो ही जाएगा। फाइनल ईयर पे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बस यही है कि 4 साल नहीं तो कम से कम 2 साल, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अच्छे से मेहनत करना, एंजॉय करो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। Sir, what was your overall experience from BC Bhagalpur? बीसी भागलपुर से सारे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, सच बताऊं तो। जैसे कि सीनियर्स का एकदम अच्छा खासा सपोर्ट है बीसी भागलपुर का। तुम लोग भी देख ही रहे होंगे कि सीनियर सब कितना Yes, sir. सपोर्ट करते हैं। हाँ, सीनियर सब गाइड करते हैं कि भले ही वो ना कर रहे हो लेकिन वो गाइड अच्छा कर देते हैं। ये तुम लोग फील किए होंगे। हाँ, तो सीनियर सब मतलब गाइड अच्छा करते हैं कि चलो ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो सीनियर सब मतलब गाइड अच्छा करते हैं। तो मतलब जो भी है कॉलेज में बस सीनियर्स है और फैकल्टी है, तो उनको फॉलो करो, सब कुछ अच्छे हो जाएगा। सारा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, मतलब मजा आया कॉलेज में। सर जैसे कि अपने कॉलेज में बहुत सारे क्लब हैं, तो आपका ये क्लब में इंटरेस्ट था या फिर आप ज्वाइन किए थे? बेसिकली मैंने वो क्लब ज्वाइन किया था, वो रोबोटिक्स करके है ना, कुछ इसरोज वगैरह, इसरोज करके वो Yes, sir. क्लब ज्वाइन किया। हाँ, वहाँ पे मैंने वही जो बेसिकली सब बनाते हैं, एलाफार बनाया था, एक्वा बोर्ड बनाया था, यही सब बनाया था। वो क्लब मैंने ज्वाइन किया था। बाकी मैं धीरे धीरे ये सबसे कट गया कि मुझे लगा कि जो होगा मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम का कुछ ज्यादा बेनिफिट मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि गेट ही सही से करना है, तो मैं धीरे धीरे ये सबसे कट गया। मैंने कोई क्लब उतना ज्वाइन नहीं किया हुआ था। मैं मोस्टली डिवोट था गेट के द्वार से, इसीलिए मैं ज्यादा इधर इन्वॉल्व नहीं हो पाया। एनसीसी के बारे में सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? उससे क्या बेनिफिट मिलता है आगे? एनसीसी से बेनिफिट तो एक पहला हो जाता है कि तुम्हारा एक्सरसाइज वगैरह हो जाता है, फिजिकली फिट हो जाता है। दूसरा, अगर तुमको फ्यूचर में अगर इसी फील्ड में जाना है, कि जैसे कि इंडियन आर्मी में भी बहुत सारे टेक्निकल रिक्रूटमेंट होते हैं, उसमें जाना है या मिलिट्री वगैरह में जाना है, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन एनसीसी। अदरवाइज फिजिकली फिट तो सब हो ही जाते हैं मतलब एनसीसी ज्वाइन करने से। ये एक मुझे एक बेनिफिट लगता है, लेकिन वही कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैंने ये सब Yes. ज्वाइन नहीं किया। सर कॉलेज में आने के बाद बहुत सारे क्लब के जो सीनियर्स होते हैं बताते हैं कि क्लब ज्वाइन करो तो तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, स्टेज फियर जाएगा। तो सर ये क्या सही है या फिर? देखो, डेफिनेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, लेकिन यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ज्यादा तुम्हारा जैसे सॉफ्ट स्किल होता है, एक हार्ड स्किल होता है। अगर तुम्हारे पास हार्ड स्किल ही नहीं है तो तुम सॉफ्ट स्किल को, अपने सॉफ्ट स्किल के थ्रू अपने हार्ड स्किल को कैसे प्रेजेंट करेगा? तो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, तो तुमको दोनों पे फोकस करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्ट स्किल पे ही, सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ही फोकस करना है। टाइम दो, क्लब पे भी टाइम दो, लेकिन तुम्हारे जो हार्ड स्किल है जैसे कि कोडिंग वगैरह, ये सब भी करना करना जरूरी है तुमको। सॉफ्ट स्किल एक, क्या बोलूं कि एक सपोर्टिंग हैंड है तुम्हारे हार्ड स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन क्लब। ऐसा नहीं कि इन्वॉल्व हो जाना है, अरे अब तो 18 का 18 घंटा, 24 का 24 घंटा उस क्लब में दे, ऐसा नहीं करना है। बस एक आध क्लब ज्वाइन करना है। ये नहीं कि डांस क्लब भी ज्वाइन कर लिए, सिंगिंग क्लब भी ज्वाइन कर लिए, एनसीसी भी ज्वाइन कर लिए, इसरोज भी ज्वाइन कर लिए, सारा इन्वॉल्व नहीं होना। बस कोई एक क्लब को ज्वाइन कर लेना है, या एक या दो क्लब, बस ज्यादा नहीं, पूरा इन्वॉल्व नहीं होना है। Sir, what role do you believe alumni can play in supporting and giving back to their loving juniors? देखो, एलुमनाई का नेटवर्क बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रोल प्ले करता है कि अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि कोई कोई बहुत सारे हमारे सीनियर्स है जो अच्छी जगह काम कर रहे हैं, जो लेकिन हमारे कॉलेज वाले को पता नहीं है कि कोई एप्पल में भी काम कर रहे हैं, कोई रेडबस में भी काम कर रहे हैं। तो उनसे अगर हमारा कनेक्शन आता, जैसे कि अभी एक न्यूज आया था ना कि बहुत सारे आईआईटीज में प्लेसमेंट नहीं लग रहे, तो उन्होंने मतलब अपना एलुमनाई नेटवर्क से हेल्प लिया प्लेसमेंट के लिए। तो इसी तरह अगर हमारे बीसी भागलपुर के जो मतलब जो हमारे अपर लेवल के आदमी है, वो सब अगर एलुमनाई से अच्छा नेटवर्क बना के रखते हैं, तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा कि बच्चों को प्लेसमेंट के लिए, अगर प्लेसमेंट नहीं लग रहे तो बहुत सारे अच्छी जगह पे, तो वो सपोर्ट कर सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, या कितने अच्छे पीएसयूज में काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं बच्चों को कि कैसे इसका इंटरव्यू क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है। ये सब एलुमनाई नेटवर्क से ही हेल्प मिलेगा। हमारे जो सीनियर्स हेल्प करते हैं, लेकिन उनको तो बस ये 4 साल का आइडिया है ना, 4 साल से ऊपर के लिए तो हमें डेफिनेटली एलुमनाई नेटवर्क का ही हेल्प जरूरत पड़ेगा। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर कॉलेज। सर, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हम लोग को कि हम लोग का प्लेसमेंट और गेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाए?
हाँ, अगर मैं मतलब स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जैसे जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, उनको अभी से गेट में इन्वॉल्व नहीं होना है। उनको बस अपना अभी एंजॉय करना है, सारे चीज को एक्सप्लोर करना है कि कोडिंग भी देखना है, डेवलपमेंट भी देखना है, सीएससी के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, और क्लब भी ज्वाइन करना है और गेट को भी देखना है, सारी चीज को एक्सप्लोर करना है। अभी डिवोट नहीं हो जाना है कि अरे मुझे नहीं मिला जेईई मेंस के थ्रू एनआईटी आईआईटी, तो अब मुझे गेट देना है, आईआईटी जाना है। बस ये 2 साल एक्सप्लोर करना है, उसके बाद थर्ड ईयर से सीरियस हो जाना है, किसी एक गोल को पकड़ के चलना है। ऐसा ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर में भी 2-3 एम रखना है कि इसमें भी चले जाते हैं, इसमें भी चले जाते हैं, बस कोई एक गोल को थर्ड ईयर से पकड़ लेना है। और अगर थर्ड ईयर में सक्सेस नहीं मिलता है तो उसको फाइनल ईयर तक सक्सेसफुल बना लेना है, ड्रॉप नहीं लेना है एट एनी कॉस्ट। ड्रॉप लेके सब मतलब जेईई के टाइम मोस्टली सब आदमी ड्रॉप लेते हैं और उनको पता रहता है ड्रॉप में कुछ नहीं होता है, तो वो डिमोटिवेशन तुम्हारे ये जो फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लोगे उसको इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो करना है थर्ड ईयर और फाइनल ईयर तक कर लेना। सी ब्रांच से हूँ, तो सर मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि जैसे गेट का सिलेक्शन करना चाहिए या फिर प्लेसमेंट का, तो इसके लिए मुझे क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे आप? तो जैसे कि देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था गेट और प्लेसमेंट में 5 सब्जेक्ट सी डी एस एल्को ओएस बीएमएस और सीएन, ये कॉमन है। तो इसको तुम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लो, वो तुम्हारा हेल्प करेगा प्लेसमेंट में भी। और तुम अगर फिर मजा आने लगता है इसमें गेट में, तो तुम गेट दो। और प्लेसमेंट अगर तुमको लग रहा है कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, श्योरिटी है क्या, अच्छा मैं कर लूंगा, तभी तुम प्लेसमेंट हो जाओ। लेकिन यही है कि प्लान भी तुमको रखना ही पड़ेगा, प्लेसमेंट को या गेट पे किसी को प्लान भी रखना ही पड़ेगा, ताकि कॉलेज से तुमको ही पता है कि श्योरिटी नहीं है कि प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा। तुमने अपने सीनियर्स को भी देखा होगा, सारे तो प्लेस नहीं है। तो ये जो डाउट है, इसको लिए तुमको एक बैकअप प्लान ऐसे गेट रखना पड़ेगा। और तुम तो इसी से हो तो तुमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि प्लेसमेंट और गेट का सिलेबस, गेट इसी का सिलेबस में ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है, तुमको मैनेज करना ही पड़ेगा। सर जैसे कि आपने गेट कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? मैं गेट वही थर्ड ईयर से मैं सीरियस हो गया था, थर्ड ईयर के अप्रैल या सर। अप्रैल या जून या जुलाई से मैं सीरियस हो गया था। तो उतना सीरियस था नहीं, मतलब बस मुझे लगा था कि चलो थर्ड ईयर में उसी टाइम अपॉर्चुनिटी आया था गेट देने का, तो मैंने जस्ट सोचा कि चलो स्टार्ट करते, सिलेबस को पहले देखते हैं। तो सिलेबस तो 13 सब्जेक्ट है, तो तभी डर लग जाता है, अरे यार बहुत ज्यादा सिलेबस है, कैसे होगा। फिर मैंने सोचा कि इसको मॉड्यूलर वे में करते, एक एक सब्जेक्ट जो सेमेस्टर्स में है उसको करते जाता और फिर धीरे धीरे मैं कंप्लीट करूंगा। तो मैंने थर्ड ईयर में जो अराउंड 5 सब्जेक्ट मैंने ये 22 का जो दिया था, उसमें 5 सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या हो गया, लोड कम हो गया। तो इसी तरह तुम लोग ट्राई करो कि अगर नहीं हो रहा है पूरा, तो कम से कम 5 सब्जेक्ट से अच्छा रैंक ले आओ, कम से कम 10,000 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो तुमको तो ये तो रहेगा ना कि अब मेरा 10,000 बच्चा से ही कंपटीशन रहा, 1 लाख बच्चा से कंपटीशन नहीं है। तो यही कि थर्ड ईयर को यूटिलाइज करो, एक गेट में अच्छा रैंक लाओ, और फाइनल ईयर में क्या करना है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेना है टिल अक्टूबर या सितंबर तक। तो उसके बाद कम से कम 3 मंथ प्रैक्टिस के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए बचा के रखना, और उसके बाद तुम्हारा डेफिनेटली गेट हो जाएगा। और उसके बाद मैं तो वहीं गाइड कर दूंगा। सर जैसे कि सबको ओएस का बहुत डर लगता है, ओएस से रिलेटेड, जैसे थ्योरेटिकल थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उस पे से क्या बताना चाहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो इजी है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मतलब कि सबको सीओ से मैंने सुना डर लगता है। सीओ में क्या है कि थोड़ा सा मतलब कोड पढ़ना ज्यादा रहता है ना, कि कंप्यूटर साइंस में जैसे सीपीयू कैसे काम करता है, तो धीरे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम जो अनअकैडमी पे विश्वदीप घोटी है उनको फॉलो करो, मैंने उनको फॉलो किया, फिर डर मेरा खत्म हो गया। एक अच्छी टीचर की जरूरत है तुमको, और अच्छे से कोर्स करना, अच्छे से क्वेश्चंस बनाना, फिर सारे डर खत्म हो जाएंगे। Sir, please give a message for BCENs. ओवरऑल पूरे सेशन में जो भी था उसे कंक्लूड करके अगर आप बोलना चाहें तो। हाँ, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा बीसीएंस को कि अरे मतलब अभी एंजॉय करो। अगर जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको एंजॉय करना है, उनको ज्यादा अभी पढ़ाई में नहीं घुसना है। पढ़ाई में घुसने के लिए बहुत टाइम है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को सही से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि थर्ड ईयर में भी एंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी किए, सेकेंड ईयर में किए, थर्ड ईयर में किए और फाइनल ईयर में भी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कस के एंजॉय करो, जहाँ घूमने के जाने का मन है वहां घूमने जाओ, जो करना है करो। लेकिन थर्ड ईयर से सीरियस हो जाना, एकदम सीरियस हो जाना थर्ड ईयर से। और फाइनल ईयर तक आते आते मार्च या अप्रैल तक, जो फाइनल ईयर होता है मार्च अप्रैल में, उसमें कम से कम एक जॉब मेरे हाथ में रहना चाहिए, ताकि मेरे ऊपर प्रेशर ना हो, घर से हो ना खुद का प्रेशर हो, ताकि मैं आगे आने वाली चीजों को सही से एंजॉय करना चाहूँ। तो
और मेहनत करना है बस। एक कोई अच्छा सा अगर प्लेसमेंट में जाना है तो कोई एक अच्छा वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लो सही से, और गेट करना है तो जो 12 सब्जेक्ट है इसको सही से करना है, एकदम से सही से, ताकि अगर तुम्हारा गेट नहीं भी होता है, तो जैसे मेरा गेट अच्छा रैंक नहीं आया, तो आगे बहुत सारे पीएसयूज होते हैं जो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। बस दैट इज ऑल। सीएससी डिपार्टमेंट के टीचर्स जैसे सर मिंटू सर, निखिल सर आपको बहुत याद करते हैं, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए मतलब मिंटू सर के लिए डेफिनेटली संदेश है। उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनसे बहुत ज्यादा गाइडेंस लिया है। वो सही, उनका जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं। वो उनके अगर सही से कोई पढ़ लेते हैं तो वो पढ़ लेगा तो वो गेट क्लियर कर लेगा। जी वो सर, अच्छे से पढ़ाते हैं गेट। हाँ, एकदम। वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो सर ने बहुत हेल्प किया। मैंने मतलब मैं भी कंफ्यूज था कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद ज्वाइन करूँ या बार्क ज्वाइन करूँ, तो सर ने ही मुझे गाइड किया कि राइट सर, हाँ। बार्क तो सर मतलब सर बहुत अच्छे हैं, मिंटू सर बहुत अच्छे हैं। निखिल सर से उतना मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन निखिल सर भी एल्गोरिथम पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा एल्गोरिथम पढ़ाते हैं निखिल जी सर। जी सर। Thank you, sir. On behalf of Campus TV and Radio Club, I extend a heartfelt thank you to our esteemed alumni, Krishna Jaiswal sir, for gracing us with his presence today for this enriching alumni session. Sir, we are deeply honored and grateful for these valuable insights, experiences, and memories that you have shared with us about your college life and our college in such a friendly way. Your participation has strengthened the bond between our alma mater and alumni community. Also, very much thank you to Chandrabhanu sir, secretary of our club, who always have motivated to do our best. Lastly, to all the attendees, thank you for your active participation, insightful questions, and enthusiastic engagement throughout the session. As we conclude this session, let us carry forward the spirit of learning and collaboration that defines our online community, alumni community. Thank you once again, sir, to make this session a resounding success. We look forward to many more such meaningful interactions in the future with you. Wishing you all the continued success and prosperity, sir. Thank you, sir. Thanks a lot to Campus Radio TV BC Bharat and all the loving juniors. Thank you, sir.